بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں اوور بلنگ کا پینڈورا باکس کھل گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر نیب تحقیقات کا آغاز۔ 6 ماہ کے دوران کریڈٹ اور ڈیبٹ ایڈجسٹمنٹ کا ڈیٹا مانگ دیا۔ نیب ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ 5 سال کے دوران اوور بلنگ کے ریکارڈ توڑے گئے۔ 90 کروڑ یونٹس پر کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ دی گئی ہے۔ لیسکو میں اوور بلنگ کا پینڈورا باکس کھل گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب نے لیسکو سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران کریڈٹ اور ڈیبٹ ایڈجسٹمنٹ کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے اوور بلنگ کے مرتکب افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیب لیسکو کے ریکارڈ کے مطابق ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ ذرائع کے مطابق لیسکو میں گزشتہ 5 سال کے دوران اوور بلنگ کے ریکارڈ توڑے گا۔ 5 سال کے دوران اوور بلنگ کر کے لائن لاسز کو 9% تک لایا گیا۔ اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران دوبارہ لائن لاسز 15% تک ہو گئے۔ سابق لیسکو چیف چودھری محمد امین کی تعیناتی کے دوران زیادہ اوور بلنگ کی گئی۔ یاد رہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر 90 کروڑ یونٹ سے زائد پر کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ دی گئی۔ کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ دینے پر صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف ملا تھا۔ چند کروڑ کا شو اور 1.5 ارب کا خرچ۔ پی ایچ اے نے کابینہ سے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 1.5 ارب روپیہ منظور کرا لیا۔ گزشتہ سال ہارس اینڈ کیٹل شو 2 کروڑ کی بجٹ سے کرایا گیا تھا۔ نوامہ پی ایچ اے تاریخ کا سب سے مہنگا شو کرائے گا۔ بڑے سنگر آئیں گے، بھاری خرچے ہوں گے۔ حکومت نے تعلیم، صحت اور ڈیولپمنٹ میں اخراجات کے بجائے لاہوریوں کی تفریح پر خزانے کا منہ کھول دیا۔ پی ایچ اے کروڑوں کے بجٹ کا ہارس اینڈ کیٹل شو اب 1.5 ارب میں کرائے گی۔ پی ایچ اے کابینہ سے 1.5 ارب منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 2 کروڑ کا بجٹ کروایا تھا۔ سرکار نے اپنے وسائل استعمال کر کے خزانے سے ہارس اینڈ کیٹل شو کا بجٹ کم کروایا تھا۔ گزشتہ سال ہارس اینڈ کیٹل شو کے بجٹ میں اسپانسرز نے بھی حصہ ڈالا جانا تھا، تاہم چند وجوہات کی بنا پر پروگرام جشن بہارا میں تبدیل کر دیا گیا۔ رواں ماہ پی ایچ اے تاریخ کا سب سے مہنگا ہارس اینڈ کیٹل شو کروا کر تاریخ رقم کرے گا۔ پی ایچ اے مہنگے ایونٹ، بڑے سنگر سمیت بھاری خرچے سے پروگرام ترتیب دے رہا ہے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال کا تخمینہ لاگت 80 ارب سے بڑھ گیا ہے۔ سنگ بنیاد کے بعد بھی منصوبے میں رد و بدل سے لاگت بڑھ گئی ہے۔ کینسر ہسپتال کی وفاقی حکومت سے منظوری لینا ہوگی۔ ایکنگ کی منظوری سے نواز شریف کینسر ہسپتال تعمیر ہوگا۔ نواز شریف کینسر ہسپتال منصوبے کے سنگ بنیاد کے بعد رد و بدل سے لاگت کا تخمینہ 80 ارب سے تجاوز کر گیا۔ نواز شریف کینسر ہسپتال منصوبے کی وفاقی حکومت سے منظوری لینا ہوگی۔ ایکنگ کی منظوری سے نواز شریف کینسر ہسپتال تعمیر ہوگا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہسپتال کی لاگت اضافی مشینری کی خریداری سے بڑھی ہے۔ ہسپتال کی لاگت بڑھنے سے دوبارہ ایکنگ کی منظوری لی جا رہی ہے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہوگا۔ پنجاب کابینہ سے لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ منظور۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ ٹرانسپلانٹ پروگرام کے لیے 2.5 ارب روپے کی منظوری۔ فورینزک سائنس اتھارٹی کے پرانے اور فرسودہ آلات تبدیل ہوں گے۔ چبرجی گارڈنز میں 3 منزلہ ٹاور بنے گا۔ ٹولنٹن مارکیٹ کی بحالی کے لیے 19 کروڑ 20 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ منظور۔ پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت قرار دینے اور پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی رولز 2024 کی منظوری دی گئی۔ ٹرانسپلانٹ پروگرام کے لیے 2.5 ارب روپے منظور۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ٹوئنٹن مارکیٹ کی بحالی کے لیے 19 کروڑ 20 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ ہر ضلع میں ماڈل بازار قائم کرنے کے لیے کابینہ نے ابتدائی طور پر 2 ارب 58 کروڑ کی منظوری دے دی۔ کابینہ سے ٹورزم انٹرنشپ پروگرام کی لانچنگ کی منظوری مل گئی۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی 276 ٹیکنیکل اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فورینزک سائنس اتھارٹی کے پرانے اور فرسودہ آلات تبدیل ہوں گے۔ چبرجی گارڈنز میں 3 منزلہ ٹاور بنے گا۔ سرکاری اسکولوں میں اسپوکن انگلش اور ریڈنگ آورز کے لیے فاؤنڈیشنل لرننگ پالیسی پنجاب 2024 کی منظوری مل گئی، جس میں ایوننگ کلاسز کے اجراء کی اجازت بھی مل گئی۔ پنجاب کابینہ نے پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاجی مظاہرے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے
लिए एक खसूसी पैकेज का ऐलान किया। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2,90,00,000 रुपए का पैकेज दिया जाएगा। जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 10,000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों की इस्दाद फसादात के लिए एक खसूसी फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला कहती हैं कि गली मोहल्लों के गंद के साथ साथ सियासी गंद को भी ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई के नए निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली कि PTI वाले इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पैसे देकर अपने धरनों में लाते हैं। एक्सपो सेंटर में मुल्क के सबसे बड़े सफाई निज़ाम सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़ुसूसी शिरकत की। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाजी कॉल को बलवा करार दे दिया। कहा सियासी जलसे जुलूस करने से कभी नहीं रोका, लेकिन इन्होंने 9 मई को अपने ही मुल्क में आग लगाई तो इसके बाद इन पर एतमाद नहीं रहा। गली मोहल्लों के गंद के साथ साथ सियासी गंद को भी खत्म करना होगा। ये दहशतगर्द हैं जिन्हें अब खत्म होना चाहिए। जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। अब आपको अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो आपके तरीके भी वही होने चाहिए। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने सफाई के नए निज़ाम से मुताल्लिक बताया कि तमाम मुल्की कंपनियां और मकामी मशीनरी के साथ इस खित्ते का बेहतरीन सफाई का निज़ाम लागू करने जा रहे हैं। तकरीब में सफाई के नए निज़ाम के कॉन्ट्रैक्टर्स, काबीना अरकान, पार्लियामेंटेरियंस और पंजाब भर के आला सरकारी अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। PHA ने दरख्त क्यों काटे, दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे। लगता है कि सब मिले हुए हैं। केस वज़ीर आला को भिजवा रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा स्कूलों की छुट्टियों को स्मोक सीजन के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। जनवरी में स्मोक दोबारा आएगी, इससे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। अदालत का इंक्वायरी रिपोर्ट में काटे गए दरख्तों की उम्र का अंदाज़ा करने का हुक्म आइंदा समाअत 6 दिसंबर को होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल खालिद इसाक, CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि टाउनशिप में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इलेक्ट्रिक बस स्टैंड पर दरख्तों को काटा गया। एडवोकेट जनरल खालिद इसाक ने बताया कि वहाँ पर 3 ऐसे दरख्त थे जिन्हें ट्रांसप्लांट करना जरूरी था। इस मकसद के लिए उनकी बड़ी शाखों को काट कर छोटा किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त अदालत को मकसद सिर्फ दरख्तों को बचाना है। ये दरख्त काटना इंतहाई मायूस करना है। जब अदालत ने नोटिस लिया तो आप ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। PHA ने दरख्त क्यों काटे, क्यों ना जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। लगता है सब मिले हुए हैं। हमें इस केस को वज़ीर आला को भिजवा रहे हैं। जिसने भी ये किया है उसने गवर्नमेंट की काविश को सबोताज करने की कोशिश की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि LDA के मास्टर प्लान 2050 को भी अदालत ने कलअदम करार दे दिया था। नए मास्टर प्लान में इन चीजों का ख्याल रखा जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि गवर्नमेंट इस वक्त पूरे पंजाब के हर शहर का मास्टर प्लान बना रही है, जो पहले कभी नहीं था। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आलूदगी के डेरे अब भी बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शरह 158 रिकॉर्ड। समोग में कमी के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:15 पर महकमे माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फजाई आलूदगी में कमी तो आ गई, लेकिन दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड किया गया। फिदा हुसैन रोड पर AQI लेवल 173 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड इंटरचेंज पर आलूदगी की शरह 171 रही। फेज A DHA में 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि CRP ऑफिस पर आलूदगी की शरह 149 रिकॉर्ड की गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बायस महकमा माहौलियात ने स्कूल के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी माहौलियात ने स्कूल 8:15 पर खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक सूरत हाल बिगड़ने के बाद स्कूल के औकात कार तब्दील किए गए थे। इससे कबल स्कूल खुलने का वक्त 8:45 मुकर्रर किया गया था। सीवरेज लाइन तब्दील करने में इर्तवा गले पड़ गया। खियाबान फिरदौसी मेन रोड एक और जगह से बैठ गई। LG ऑफिस के सामने यू टर्न पर रोड बैठने से मेन रोड बंद कर दी गई। शौकत खानम अस्पताल की जानिब जाने वाली ट्रैफिक बंद। वासा ने सीवरेज को नाकाबिल इस्तेमाल करार देकर रोड को खतरनाक करार दे दिया।
खयाबान फिरदौसी LDA के लिए दर्द सर बन गई। सीवरेज लाइन तब्दील करने में इल्तिवा गले पड़ गया। सड़क एक बार फिर LDA ऑफिस के सामने यू टर्न से बैठ गई। सड़क बैठने के बाइस हॉकी स्टेडियम के सामने यू टर्न से डायवर्शन लगाकर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। LDA ऑफिस के सामने शौकत खानम की जानिब जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे कबल खयाबान फिरदौसी पर 3 लेन में से 1 लेन को बंद करके ट्रैफिक को चलाया जा रहा था। LDA और वासा ने पंजाब हुकूमत को सीवरेज लाइन तब्दील करने का PC1 जमा करा रखा है, जिसे आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी। हुकूमत और रिंग रोड अथॉरिटी की अदम तवज्जुही रिंग रोड सदरन लूप 3 सर्विस लेन टोल प्लाजा से महरूम। 2 बार इफ्तिताह के बावजूद बुनियादी सहूलियात नापैद। SL3 पर टोल प्लाजे फ़ाल ना हो सके। मुल्तान रोड से आने वाली रायविंड रोड अड्डा प्लॉट तक मुफ्त सफ़र करने लगे। मुल्तान रोड से आने वाले रायविंड रोड अड्डा प्लॉट तक मुफ्त सफर करने लगे। रिंग रोड SL3 पर टोल प्लाजे फाल ना हो सके। इंटरचेंजेस भी नामुकम्मल। रैंप से ट्रैफिक इन आउट तात्तुल का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत और रिंग रोड अथॉरिटी की अदम तवज्जी के बाइस SL3 सर्विस लेन, टोल प्लाजा, इन आउट रैंप्स जैसी बुनियादी सर्विसेज से महरूम है। रिंग रोड अथॉरिटी और CNW ने फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करवाए बगैर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से दोबारा इफ्तिताह करवा दिया, लेकिन 7 माह बीत चुके हैं। रिंग रोड सरदरन लूप 3 मुकम्मल ना होने से रेवेन्यू जनरेशन का अमल भी तात्तुल का शिकार है। वाज़ेह रहे कि रिंग रोड पर कई साल बाद निगरान हुकूमत ने काम शुरू किया और बरवक्त मेन कॉरिडोर मुकम्मल किया। सर्विस लेन्स और टोल प्लाजा फिनिशिंग वर्क्स के दौरान निगरान हुकूमत का दौरानिया खत्म हो गया। मुआशी बेहतरी महंगाई की शरह में कमी सार्फिन तक महंगाई में कमी के असरात न पहुँचे। आटा, चीनी, दालों, घी, ऑयल की कीमतें की धूम। घर का दीगर सौदा सल्फ, चाय, सर्फ और साबुन भी सस्ते ना हो सके। आटा 20 किलो 1700 घी और 500 से 550 रुपये किलो में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी और महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती दावों के बावजूद सार्फिन तक महंगाई में कमी के असरात ना पहुँचे। ओपन मार्केट में आटा 20 किलो 1700 से जायद, घी 500 से 550 रुपए फरोख्त जारी है। चावल 320 से 500 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं और इसी तरह 800 ग्राम चाय 1700 से 1900 रुपए फरोख्त जारी है। जबकि सर्फ, सूप्स और दीगर अशा की कीमतें पुरानी सतह पर बरकरार हैं। अवाम के मुताबिक ओपन मार्केट में आटा, चीनी, दालों, घी, ऑयल की कीमतें जूं की तू हैं। घर के दीगर सौदा सर्फ, चाय, सर्फ, सूप सस्ते नहीं हो सके। बाहर मार्केट के लिहाज से ना यूटिलिटी स्टोर में तकरीबन रेट कम ही है, काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन बाहर की निस्बत अगर देखा जाए, बाहर के जो स्टोर हैं वो उन्होंने तो लूट मार में चाहिए है, लेकिन बाहर की निस्बत इधर तकरीबन समझ में आता है बंदा। आम आवाम कहते हैं हुकूमत अपने दावों की हद तक महंगाई कम कर रही है और आवाम महंगाई से बेहाल है। अब ग्रेड 16 के असातिज़ा भी घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने ड्यूटी लगा दी। हेल्थ डिपार्टमेंट से असातिज़ा को जबरी पोलियो ड्यूटी पर आने की कॉल्स। टीचर्स यूनियन का असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां खत्म करने का मुतालबा। अब ग्रेड 16 के असातिज़ा भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के बाद आए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने सीनियर असातिज़ा की पोलियो मुहिम पर ड्यूटी लगा दी। असातिज़ा को पोलियो ड्यूटी पर आने के लिए कॉल्स की जा रही है। माहिर तालीम आसिफ गौहर का कहना है ये दिन तलबा को इम्तिहान की तैयारी करवाने के हैं। टीचर्स को स्कूलों से निकालकर पोलियो पर ड्यूटी लगाना तलबा को तालीम से महरूम करने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स यूनियन ने असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां खत्म करने का मुतालबा किया है। स्कूल एजुकेशन के दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी, IT सहूलियात दस्तयाब न होने से डिजिटल सफ़र प्रोग्राम नाकामी से दो चार। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तलबा की तरबियत के लिए स्कूल्स नॉन सैलरी बजट से सहूलियात पूरी करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के दावे दरे के दरे रह गए। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी के बायस डिजिटल सफर प्रोग्राम नाकामी से दो चार। प्रोग्राम के तहत हर स्कूल से 50 तलबा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उस्ताजा की ट्रेनिंग ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। रजिस्टर शुदा तलबा को मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ऑनलाइन तरबियत दी जाना थी। स्कूलों में IT की मुनासिब सहूलियात न होने के बायस डिजिटल सफर प्रोग्राम ताहाल तातुल का शिकार है। उस्ताजा का कहना है कि डिजिटल सफर प्रोग्राम के लिए स्कूलों में कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट की भी सहूलियात फ्राहम की जाएं। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को पूरा करने के लिए नॉन सैलरी बजट भी बरवकत नहीं मिल रहा।
लिबर्टी गोल चक्कर लाखों की मालियत से तैयार होने वाला फवारा ज़बूं हाली का शिकार और गैर फ़ाल फवारा वाज के इतराफ़ में मौजूद बिल्डिंग अपना हुस्न खो चुकी है। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी राउंड अबाउट पे। यहाँ पर कुछ अरसा कबल जो है वो लिबर्टी की रौनक को बढ़ाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो फवारा लगाया गया था, उसको फ़ाल किया गया था, जिससे लिबर्टी की रौनक जो है वो दुबाला हो गई थी। लिबर्टी की जो खूबसूरती थी उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हुआ था, लेकिन अब वही फवारा जो है गैर फ़ाल है और कहीं कहीं अरसे तक जो है वो गैर फ़ाल रहता है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस पर कोई जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आता, कोई हिकमत अमली जो है वो सामने नहीं आती, जिसकी सबब से ये फवारा जो है वो अपना हुस्न खो रहा है और उसके साथ साथ उसकी इमारत जो है वो अब टूट फूट का शिकार है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर जो टाइलें थी वो टूट फूट का शिकार है। अब टाइलें जो है वो उखड़ कर नीचे गिर रही हैं, इमारत खस्ता हाल हो रही है दिन ब दिन, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। PHA हुकाम से यहाँ पर आम आवाम जो है वो शिकायत करती नज़र आती है कि लिबर्टी चौक का फवारा जो कि उसकी खूबसूरती में इजाफा करता था और उसके साथ साथ ये जो सारा एक पार्क बनाया गया था और जिसमें एक इजाफी फवारा लगाया गया था ताकि इस पार्क की खूबसूरती जो है वो बड़े राउंड अबाउट की खूबसूरती। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। तहत पिंड चंद्राय रोड पर नाकिस सीवरेज निज़ाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। नाकिस सीवरेज निज़ाम की वजह से इलाका मकीनों का पैदल गुजरना महाल हो चुका। मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। इस वक्त मैं तहायत मेन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ इंतज़ामी गफलत के बायस रोड की सूरत हाल इंतहाई बदतरीन हो गई है, क्योंकि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और सीवरेज निज़ाम भी दो चार है। सड़क के कुछ हिस्से में पानी भी जमा है और वसी हिस्सा जो है वो खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से रोड से आमदोरफ्त इंतहाई मुतासिर हो रही है। राहगीरों का यहाँ से गुजरना जहाँ मुमकिन हो गया, वहाँ पे मकीनों का ये कहना है कि बाइक सवारों के आए दिन हादसा यहाँ पे होते रहते हैं, जिस पर कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई गई इंतज़ामिया को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और इंतज़ामी अदम तवज्जो के बायस यहाँ से लोडेड गाड़ियाँ, ट्रक और कई मसरूफ़ इस सड़क पर गुजरने की वजह से इस रोड की हालत मज़ीद ख़राब तर होती चली जा रही है और कई बार रोड पर पानी इस तरह जमा होता है कि ट्रैफिक जो है वो खासी मुतासिर हो जाती है, क्योंकि एक बूंद पानी भी अगर रोड पर बारिश का गिर जाता है तो ये तालाब का मंजर पेश करती है। रोड की कई मसाइल पैदा करती है और कारोबारियों का यहाँ पे कहना है कि उनकी सरगर्मियाँ भी कारोबारी काफ़ी मुतासिर होकर रह गई, जिन पर कहना है कि जल्द अज जल्द रोड की मरम्मत करवाई जाए। रोड की जो ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। के स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सुंदस फाउंडेशन आमद। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच, खालिद अब्बास डार और डायरेक्टर फाइनेंस अली रऊफ ने इस्तकबाल किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने थैलीसीमिया के मरीज बच्चों की निगहदाश्त पर सुंदस फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एहतजाजी सियासत करने वालों को आड़े हाथों लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सुंदस फाउंडेशन मन्नू भाई मरहूम के नोबल काज को सुहेल वड़ाइच और दीगर लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा थैलीसीमिया के मामले पर कानून बनाने जा रहे हैं। उन्होंने तमाम अरकान असम्बली की 1 महीने की तनख्वाह सुंदस फाउंडेशन को देने का ऐलान किया। सुंदस फाउंडेशन इस नोबल कॉज को, मन्नू भाई मरहूम के नोबल कॉज को, और अगर मैं यहाँ पर बखील नहीं हो सकता ये बात कहते हुए कि जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने और डार साहब ने और पूरी टीम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है, ये काबिल सताइश है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यहाँ दहशतगर्दी और लड़ाई है। अगर लोग बात करना चाहते हैं तो बात करनी चाहिए। ये सियासी नहीं फसादी है। फसाद को रोकना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौन डंडे और लाठियाँ उठाकर एहतजाज करता है? ये सियासी नहीं है, ये फसादी है। सियासत तो होती है डायलॉग, सियासत होती है मैंने एक एहतजाज करना है, मैंने एक मोर्चा निकालना है, जुलूस निकालना है, लेकिन मैं उसके साथ वायलेंस अटैच नहीं कर रहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिविक लाइफ अपना रास्ता ले रही है, गाड़ियाँ रवां दवाएं चल रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा सियासी जमातों पर पाबंदी और गवर्नर राज के खिलाफ हूँ। रेंजर्स के जवान हलाक हुए, ये कहते हैं 11 लोग शहीद हुए। अगर लोग शहीद हुए हैं तो कहाँ हैं? रेंजर्स वाले हमारे जवान शहीद हुए हैं तो पूरी दुनिया ने देखा है। वहाँ पर आर्मी चीफ गए हैं, शहबाज साहब गए हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पूरी फेडरल कैबिनेट गई है, दुनिया वहाँ पर जा रही है। वो जो बेचारे हमारे लोग जख्मी पड़े हैं, किसी का स्कल फ्रैक्चर्ड है, किसी की बोन फ्रैक्चर्ड है, किसी की हड्डी टूट गई है, जिसको लाइफ के लिए उन्होंने उनको लिम्प करने के लिए छोड़ दिया है, सैकड़ों की तादाद में है। वो सारे पड़े हैं, जाकर देखे जा सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बच्चों को तोहफे दिए और एक बच्ची की कफालत का जिम्मा उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली को सुंदस फाउंडेशन के ऑपरेशंस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ नोमान की मुलाकात NX29 में सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी की बेहतरी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की गई। गुलबर्ग में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान ने शहर की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। NX29 में सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी की बेहतरी के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस मौके पर हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को किताब का तोहफ़ा भी पेश किया। IG पंजाब के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। SP सिटी काजी अली रजा ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में सिटी डिवीजन के SDPO समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान और साइलिन की बड़ी तादाद शरीक। खुली कचहरी में साइलिन ने दरपेश मसाइल के बारे में SP सिटी को आगाह किया, जिस पर SP सिटी ने इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाते हुए मौका पर अहकामात जारी किए। काजी अली रजा ने तमाम SHOs को मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाई करने और थानों में आने वाले साइलिन के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आने की हदायत की है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद इख्तियारात से तजावुज़ और तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में डिवीजनल SPs ने शिरकत की। बोर्ड में कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में ख़यानत, धोखाधही और चोरी के 26 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतअल्लिक़ अहकामात जारी किए। मुतवक्के बर्फबारी से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया मरी को रेस्क्यू सामान फ्राहम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर बराए महकमे सेहत और चेयरमैन डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू की। मतवक्का बर्फबारी से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया मरी को रेस्क्यू सामान फराहमी के हवाले से PDMA ऑफिस में तकरीब मुनक्कद हुई। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सहाफ़ियों को डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली ने मरी में मतवक्का बर्फबारी और इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बताया कि आज की तकरीब में ज़िले इंतजामिया मरी को ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं। टेंट, टोपियाँ, जराबें, फोल्डिंग शाल समेत दीगर चीज़ें दी जा रही हैं। मरी में फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। आपके इल्म है कि 7 जनवरी 2022 में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से मासूम 23 लोग अल्लाह को प्यारे हुए थे। तो आज की तकरीब में 2 ट्रक हैं जो हमने सामान ज़िले इंतज़ामिया मरी के हवाले किया है। मरी की इंतज़ामिया जो बड़ी मुतहरक है, 11 सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। जो आज हम सामान दे रहे हैं इसमें टेंट भी शामिल है, जैकेट शामिल हैं, इसमें शूज़ शामिल हैं, जुराबें शामिल हैं, उली टोपी शामिल है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने बताया कि PDMA हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में बेहतरीन काम करता है। बर्फबारी में भी इक़दामात किए जा रहे हैं। सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचने के लिए जितनी भी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ के रेस्क्यू और रिलीफ इक्विपमेंट के हवाले से, तो अब मरी में ही उनको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को पहली दफ़ा ये वहाँ परमानेंट बेसिस पे वहाँ मूव करवा दिया गया है। चेयरमैन PDMA ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने रिलीफ सामान का मुकम्मल जायजा लिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, City 42 लाहौर। A1 गर्ल्स हाई स्कूल टाउनशिप में माजूरों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब। आदिल शम्स खोखर, गजल कलीम, समीना मीर, हमायूं ज़हीर की शिरकत। मुकर्ररीन ने माजूर अफराद को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। माजूरों के आलमी दिन पर सुहेल एंड सलमा हॉस्पिटल ट्रस्ट और A1 गर्ल्स हाई स्कूल के इश्तराक से A1 गर्ल्स हाई स्कूल टाउनशिप में तकरीब मुनक्किद हुई। आदिल शम्स खोखर, प्रिंसिपल गजल कलीम, समीना मीर, हुमायूं ज़हीर समेत मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान शरीक हुए। समीना मीर ने इजहार ख्याल किया। जो हमारे स्पेशल बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो साथ साथ उनके साथ इंक्लूड किए हुए हमने। लाइक वी आर वर्किंग फॉर 2 प्रोजेक्ट्स और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर एक इंक्लूसिव सेटअप बनाया हुआ है। हर क्लास में 1 या 2 बच्चे जो हैं वो स्पेशल डेली जाते हैं। दे सिट विद द नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स, दे स्टडी विद देम एंड देन दे कम बैक टू देयर ओन इंस्टीट्यूशन। बच्चों ने टैब्लोस पेश किए, बैंड परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। हुमायूं ज़हीर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। लाहौर में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिसेबिलिटी पे काम कर रही थी, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, जिम खाना में एक ग्रैंड मीटिंग कॉल की और उनको अपने एनालिसिस उनके साथ शेयर किए। हमने उनको बताया कि ऐसे कुछ बच्चे हैं
जिनको आप अपलिफ्ट करें तो एक कारआमद शहरी बन सकते हैं। शुरा ने तकरीब के नकात को सराहा। माजूर अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। मेहमानाने गरामी में स्वेनियर्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से सच फॉर जस्टिस की जानिब से 4 पॉइंट शेल्टन होटल में तकरीब का इनेकाद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स नदीम अशरफ की शिरकत। तकरीब का मकसद बच्चों के आलमी दिन पर आगाही फराहम करना था। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से सर्च फॉर जस्टिस की जानिब से 4 पॉइंट शेराटन में तकरीब सजाई गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर पार्लियामेंट रुखसाना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्च फॉर जस्टिस राशिदा कुरैशी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सारा अहमद ने कहा, बच्चे मुआशरे का रोशन सितारा हैं। हमें अपने सितारों के लिए इक़दाम को मज़ीद तेज करना होगा। हमने एक बड़ा एक इनिशिएटिव चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ये लिया अभी रिसेंटली मैडम सीएम के हिदायत पे। वो ये था कि हमने एक कमेटी बनाई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, फर्स्ट टाइम एवर, जिसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो हेल्थ, एजुकेशन, प्रोसिक्यूशन, FIA, पुलिस, पंजाब पुलिस, सबको ऑन बोर्ड लिया। उसके अलावा NGOs, उसमें हमने रिलीजियस स्कॉलर्स भी डाले हैं। उसमें उसका मकसद ये है कि जब कोई वाक़या आए बच्चों से 6 साल का, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ एक ऑन वन पेज हो, एक लूप में हो। तकरीब में चाइल्ड प्रोटेक्शन समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों से बच्चों ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों ने क्लाइमेट चेंज और बच्चों को दरपेश मसाइल पर मबनी मुख्तलिफ पेंटिंग्स की नुमाइश की। सर्च फॉर जस्टिस से इफ्तिखार मुबारक का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। बच्चों की आरा को सुना जाए, बच्चों के ख्यालात को जाना जाए, बच्चों से पूछा जाए कि वो अपने मसाइल के लिए क्या हल तजवीज़ करते हैं। तो आज बुनियादी तौर पर इसका एक अमली मज़हर और अमली नमूना जो था वो यहाँ पर पेश हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से जो बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम्स के मेंबर्स हैं वो आए और उन्होंने चाइल्ड लेबर के ऊपर, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के ऊपर, ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो अपनी तजावीज़ और अपनी आरा जो है वो चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के साथ शेयर की। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मेंबर नदीम अशरफ ने कहा, आज के बच्चों को कॉपी पेंसिल की नहीं बल्कि लैपटॉप, कंप्यूटर के हुनर देने की जरूरत है। 2.5 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल से महरूम हैं। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा कोमल असलम, लाहौर। इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड कोट मार्केट बीम स्ट्रीट में खरीदारों का रश। कोट खरीदने वाले शहरियों का कहना है कि आम आदमी महंगाई के इस दौर में नए कपड़े खरीदने के काबिल भी नहीं रहा। मजीद अहवाल जानने के रुमेल इलियास से जी रुमेल। इस्तेमालशुदा और ब्रांडेड जो कोट हैं उनकी खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर बीम स्ट्रीट अनारकली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कोट खरीदने वाले शहरियों का रश है। मौसम सरमा की मुनासबत से शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से इस वक्त कोट की खरीदारी में मसरूफ़ है। ग्राहकों और दुकानदारों के माबैन जो भाव ताव हैं वो भी जारी है। मैं इस वक्त जिस दुकान में मौजूद हूँ यहाँ पर मेरे साथ खरीदार और दुकानदार मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो ब्रांडेड कोट हैं मौसम सरमा में इनकी जो डिमांड है जब बढ़ जाती है तो कीमतों के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। और जो बीम स्ट्रीट है यहाँ पर जब ये कोट जो खरीदने आते हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या सोचकर इस स्ट्रीट में आते हैं। जी भाईजान बताएं, आपने कोट पहना हुआ है, खरीदा है यहाँ से, तो बताइए बीम स्ट्रीट में आप आए हैं कोट खरीदने के लिए, तो अपनी पसंद का आपको मुनासिब कीमत में कोट मिल गया है, बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से ये कहूँगा कि जो 15,000 वाला कोट है हमें यहाँ पे 3,000, 2,500 का, 4,000 का मिल जाता है। बस ये हमारा जो सिलसिला जो है ना ये बहुत अच्छा है, जो मतलब है कि ना सस्ता मार्केट है ये, तो उस लिहाज से बहुत बेहतर है ये। हाँ जी बिल्कुल, 10 से 15,000 वाला जो कोट है वो इस भीम मार्केट से 2 से 3,000 रुपये में मिल जाता है। ये कहना है ग्राहकों का और उनका कहना है कि बड़ी तलाश के बाद जो है वो अच्छा और मुनासिब कोट यहाँ से मिल जाता है। दुकानदार से पूछेंगे और जानेंगे कि क्यों वो इतने सस्ते कोट यहाँ पर दे रहे हैं। बताएं जी, इतने सस्ते कोट दे रहे हैं, बाहर जो 15,000 रुपये का नया कोट है आप 2,000, 3,000 में दे रहे हैं, ये कहाँ से माल आता है और जो डिमांड है आजकल के मौसम में वो किस कोट की है ज़्यादा? सर ज़्यादातर जो आजकल डिमांड है वो वूल जैकेट्स की है, वूल कोट की है, जो शलवार कमीज के साथ आसानी से आप पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं लोगों के लिए। और बात यही आ जाती है कि सर हमारी एक माकूल प्रॉफिट है, जो लोग समझते हैं कि अगर हम ये चीज़ स्टिच करवाएं, अगर हम स्टफ़ लें तो हमें 20-25 हज़ार रुपये में ये चीज़ पड़ेगी, लेकिन हमारे पास आपको वही चीज़ उससे बेस्ट क्वालिटी, उससे बेस्ट स्टिचिंग में आपको 4 से 5,000, 3,000 में कोट अच्छा मिल जाएगा आपको हमारे पास है, जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल है। और मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का बढ़ चुका है हमारी दुकानों पे अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों को अब समझ लगी है कि बजाय के सिलवाने के हमें ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए। सिले सिलाई इंपोर्टेड फैब्रिक में आपको इंपोर्टेड चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, रुमेल इलियास आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के एहतमाम बैंकिंग, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के उन्वान से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वाइस चांसलर PU डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर अहमद मुनीब मेहता, अतर अब्बास की शिरकत।
डॉक्टर मोहम्मद अली कहते हैं कि हर ग्रेजुएट को मसनूई जहानत से आशना होना चाहिए। PU हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के ज़रिए तमाम बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के उन्वान से 2 रोज़ा नवी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली थे। प्रिंसिपल हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस डॉक्टर अहमद मुनीब मेहता अतर अब्बास ने शिरकत की। दौरान हमल ज़ियाबतीज़ के मसाइल और एहतियाती तदाबीर के मौजू पर जनरल अस्पताल में आगाही लेक्चर। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रीद जफर ने दौरान हमल ज़ियाबतीज़ की पेचीदगियों और इलाज पर रोशनी डाली। जनरल अस्पताल में दौरान हमल ज़ियाबतीज़ के मसाइल और एहतियाती तदाबीर पर आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रीद जफर ने आगाही लेक्चर दिया। डॉक्टर अल्फ्रीद जफर ने कहा कि दौरान हमल ज़ियाबतीज़ और ब्लड प्रेशर जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हामला ख़वातीन बाकायदगी से अपना तिबी मुआयना करवा कर पेचीदगियों से महफूज रह सकती हैं। रायविंड में 11वें सुंदर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह मुकाबले 10 रोज़ तक जारी रहेंगे। रायविंड सनती जोन सुंदर स्टेट में 11वें सुंदर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही रोज़ 5 मैचेस खेले गए, जबकि लीग के दौरान हर टीम ने 4 मैचेस खेले। 10 रोज़ा लीग में 20 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, जबकि लीग का हर मैच 5 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा। पॉइंट टेबल पर पहली 4 पोजीशंस हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल खेल सकेंगी। अजहर जैदी सदर LRCA के एडवाइज़र मुकर्रर अजहर जैदी ने ख्वाजा नदीम के हमरा LRCA पवेलियन की तज़ीन व आराइश के काम का जायज़ा लिया। लाहौर की क्रिकेट को मज़ीद बेहतर करने के लिए पुरउम्मीद ख्वाजा नदीम अहमद कहते हैं कि उम्मीद है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी रवां हफ्ते ही पवेलियन का इफ्तिताह करेंगे। साबिक मैनेजर कौमी क्रिकेट टीम और मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर अजहर जैदी को सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम ने अपना एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। अजहर जैदी ने ख्वाजा नदीम से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर ख्वाजा नदीम ने इन्हें नोटिफिकेशन पेश किया। ख्वाजा नदीम और अजहर जैदी ने LRCA के दोबारा तैयार होने वाले पवेलियन का दौरा भी किया। ख्वाजा नदीम का कहना है कि जब चार्ज संभाला तो पवेलियन की हालत इंतहाई खस्ता थी, जिसे दोबारा तैयार करवाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास का वेन्यू है, तो इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए। और दफ्तर की भी हमें एक स्पेस चाहिए थी, और कुछ खाने की जगह जो प्लेयर्स यहाँ पे अपना एक उनका सिस्टम है खाने का, उसके लिए भी स्पेस नहीं थी। तो हमने फिर इसकी प्रॉपर रेनोवेशन कराई, बाहर से भी इसको ठीक कराया, अंदर से भी इसको ठीक कराया, और इसको तकरीबन 3 महीने लगे हैं, सारी 3 से 4 महीने इसको सारे को ठीक कराने में। अजहर जैदी ने कहा कि भरपूर कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर लाहौर की क्रिकेट को मजीद बेहतर करें। सबसे बड़ी बात थी कि मैं तो क्योंकि मैनेजर भी रहा हूँ, आपको याद है पिछले सालों में सामने टेंट में टीम बैठती थी, जबकि हमारे पास इंग्लिश कोचेस थे, तो वो नहायत ऑकवर्ड लगता था कि यार एक LRCA में मैच हो रहा है और हम पवेलियन यूज़ नहीं कर सकते। तो बड़ी ये मुबारकबाद भी खाई साहब को, और खुदा करे कि ये और अच्छे काम ऐसे करें जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर हों। ख्वाजा नदीम कहते हैं उम्मीद है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी रवां हफ्ते में ही पवेलियन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अजहर जैदी को मुलाजिम बनाने का मकसद उनके तजर्बे से फायदा उठाना है। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजन्नो सिटी 42। नेशनल मेंस रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में जारी दूसरे रोज 70 किलोमीटर टीम रोड टाइम ट्रायल साइकिल रेस आर्मी ने जीत ली है। नेशनल मेंस रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले जारी हैं। चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी आर्मी ने अपनी बर्तरी बरकरार रखी। 70 किलोमीटर टीम रोड टाइम ट्रायल साइकिल रेस आर्मी ने अपने नाम कर ली। आर्मी की टीम ने मुकर्रर फासला 1 घंटा 32 मिनट में तय करके पहली पोजीशन अपने नाम की। वापडा की टीम 1 घंटा 33 मिनट के साथ दूसरे और 1 घंटा 49 मिनट के साथ रेलवे की टीम तीसरे नंबर पर रही। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट से ही वो आगे इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। मुंतजमीन ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान साइकिलिंग में अपना खोया हुआ मुकाम एक बार फिर हासिल करे। मैं समझता हूँ कि अगर हर प्रोविंस के स्पोर्ट्स बोर्ड उन साइकिलिंग की टीमों को फैसिलिटेट करें तो वो भी डिपार्टमेंट से कम परफॉर्म नहीं कर सकते। कल के इवेंट में भी जो है वो बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ है, और आज का भी चैंपियनशिप के आखिरी रोज 120 किलोमीटर रोड एक्सरेज रेस होगी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से साइकिलिस्ट शरीक होंगे। वसीम अहमद सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।